قدیم اصفہان کا بازار، ایک ایسا منظر جہاں زندگی اپنے پورے جوبن پر تھی۔ ہوا میں زعفران کی مہک گھلی ہوئی تھی، جس کے ساتھ عود اور مشک کی خوشبوئیں مل کر ایک ایسا سحر پیدا کرتی تھیں کہ آنے والا ہر شخص چند لمحوں کے لیے خود کو کسی اور ہی دنیا میں محسوس کرتا۔ ریشم کے تھان دکانوں پر ایسے سجے تھے جیسے قوس قزح زمین پر اتر آئی ہو۔ کہیں سنار سونے کو آگ میں تپاتے، کہیں کمہار مٹی کو زندگی دیتے، اور کہیں سوداگر اونچی آواز میں اپنے مال کی تعریف کرتے نظر آتے۔ اسی ہنگامے کے بیچ ایک دکان تھی، سب سے بڑی، سب سے نفیس اور سب سے زیادہ مصروف۔ یہ تھی ہارون کی دکان۔ ہارون اصفہان کا مشہور سوداگر۔ وہ نہ صرف اپنی دولت کے لیے جانا جاتا تھا بلکہ اپنی ظاہری خوبصورتی کے لیے بھی۔ اس کا لباس ہمیشہ قیمتی ریشم کا ہوتا، اس کے جوتے چمڑے کے بہترین نمونے، اور اس کی خوشبو دور سے ہی اس کی آمد کا اعلان کر دیتی۔ مگر اس کی اصل پہچان کچھ اور تھی۔ قیمت کم نہیں ہو سکتی، ہارون نے ایک غریب دیہاتی پر جھڑکتے ہوئے کہا۔ مگر حضور، میرے پاس بس اتنے ہی سکے ہیں، دیہاتی نے جھکی ہوئی نظروں سے جواب دیا۔ ہارون نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ بازار تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آس پاس کھڑے لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ ہارون کو کچھ کہے۔ اس کی دولت نے اسے طاقت بھی دی تھی اور ایک طرح کی بے حسی بھی۔ ہارون کے لیے لوگ دو قسم کے تھے، یا تو وہ جو اسے منافع دے سکتے تھے، یا وہ جو اس کے لیے بیکار تھے۔ اور افسوس کی بات یہ تھی کہ دوسری قسم کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ ایک دن اس کا شاگرد علی ہمت کر کے بولا، مالک، اگر آپ تھوڑا نرم لہجہ اختیار کریں تو لوگ آپ کو زیادہ عزت دیں گے۔ ہارون نے کیا کہا لگایا، عزت دولت سے آتی ہے علی، اور میرے پاس اس کی کوئی کمی نہیں۔ علی خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سوال باقی رہ گیا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، بازار کی چہل پہل آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ دکانیں بند ہونے کو تھیں اور آسمان پر نارنجی روشنی پھیل رہی تھی۔ اسی وقت ایک سایہ ہارون کی دکان کے سامنے رکا۔ وہ ایک درویش تھا۔ اس کا لباس سادہ اور پوسیدہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو عام انسانوں میں کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ ہارون نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ناگواری سے بولا، اگر کچھ خریدنا نہیں تو راستہ لو، میرے پاس وقت ضائع کرنے کا شوق نہیں۔ درویش نے مسکرا کر کہا، میں خریدنے نہیں، بیچنے آیا ہوں، اور جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ ہارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں ایسی کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ درویش نے آہستہ سے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا آئینہ نکالا۔ یہ کوئی عام آئینہ نہیں تھا۔ اس کے کنارے پرانے تھے، مگر اس میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ خود کسی راز کو چھپائے بیٹھا ہو۔ یہ کیا ہے؟ ہارون نے بیزاری سے پوچھا۔ درویش نے آئینہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ آئینہ دنیا نہیں دکھاتا، یہ وہ دکھاتا ہے جو آسمانوں میں تمہاری روح کی حقیقت ہے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہارون نے ہنسنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل میں ایک انجانی سی خلش پیدا ہو چکی تھی۔ اور تم سمجھتے ہو کہ میں اس فضول چیز کو خرید لوں گا؟ درویش نے سکون سے جواب دیا، تم اسے ضرور خریدو گے، کیونکہ سچائی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور تم نے اسے کبھی خریدا نہیں۔ یہ الفاظ ہارون کے غرور پر چوٹ کی طرح لگے۔ قیمت کیا ہے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ درویش نے گہری نظر سے اسے دیکھا، جیسے وہ اس کے اندر تک جھانک رہا ہو، پھر بولا، صرف اتنی جتنی تم سچ برداشت کر سکتے ہو۔ ہارون نے جھنجلا کر سونے کے چند سکے اس کی طرف اچھال دیے۔ لے لو اور اب جاؤ یہاں سے۔ درویش نے سکے اٹھائے، مگر جاتے جاتے ایک بات کہہ گیا، یاد رکھنا، ہر شخص اپنی حقیقت دیکھنے کے بعد ویسا نہیں رہتا جیسا پہلے تھا۔ ہارون نے بے اعتنائی سے کندھے اچکائے اور آئینہ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ چھوٹا سا آئینہ اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بازار کی وہی گلیاں جو دن میں شور سے بھری رہتی تھیں اب سنسان تھیں۔ ہارون اپنی وسیع حویلی کے اندر ایک بڑے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ دیواروں پر قیمتی قالین لٹک رہے تھے، شمع دانوں کی روشنی ہلکے ہلکے لرز رہی تھی، اور کمرے کے بیچوں بیچ وہ آئینہ رکھا تھا، خاموش مگر جیسے کسی انتظار میں۔ ہارون نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھتے ہیں آخر اس میں کیا خاص بات ہے، اس نے خود سے کہا۔ وہ آئینے کے قریب آیا اور اسے اپنے سامنے اٹھا لیا۔ چند لمحے سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر پھر اس کی سانس رک گئی۔
आईने में जो चेहरा नजर आ रहा था वो उसका नहीं था, या यूं कहिए वो उसका ही था, मगर वैसा नहीं जैसा वो खुद को जानता था। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें बेनूर, जिल्द पर सियाह धब्बे, जैसे किसी अंदरूनी जहर ने बाहर रास्ता बना लिया हो। होंठ खुश्क और पूरा वजूद एक अजीब सी बदसूरती में डूबा हुआ। ये क्या है? हारून घबराकर पीछे हट गया। उसने फौरन करीब रखा हुआ दूसरा आईना उठाया, एक आम आईना। उसमें वो वैसा ही नजर आ रहा था जैसा हमेशा, खूबसूरत, शानदार, बेऐब। ये जादू है या फरेब? उसने गुस्से से कहा। वो दोबारा उस पुरस्कार आईने के सामने आया। इस बार उसने खुद को संवारने की कोशिश की, अपने बाल दुरुस्त किए, लिबास ठीक किया, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, मगर आईने में अक्स और भी बदतर हो गया। आंखों के नीचे गहरे साए उभर आए, चेहरा और ज्यादा भयानक दिखाई देने लगा, जैसे हर मसनूई हरकत उसकी हकीकत को मजीद बेनकाब कर रही हो। हारून के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसके जहन में एक एक करके वो तमाम लम्हात उभरने लगी। वो गरीब देहाती जिसे उसने धुतकारा था, वो बूढ़ी औरत जिसे उसने कम तोल कर माल दिया, वो यतीम लड़का जिसे उसने दुकान से निकाल दिया। हर जुल्म, हर धोखा जैसे इस आईने में जमा हो गया था। ये मेरी रूह है, उसने आहिस्ता से सरगोशी की। कमरे की खामोशी उसके सवाल का जवाब बन गई। वो कुर्सी पर गिर पड़ा, उसके माथे पर पसीना था। मैं तो हमेशा खुद को कामयाब समझता था, उसने टूटती हुई आवाज में कहा, मगर अगर ये सच है तो मैं तो सबसे ज्यादा खसारी में हूं। रात भर वो करवटें बदलता रहा, कभी आईने को छुपाने की कोशिश करता, कभी उसे देखने से खुद को रोक न पाता। सुबह होते ही उसने एक फैसला किया, मैं इसे बदल सकता हूं, हाँ, बस मुझे अपने अमाल ठीक करने होंगे। इसी उम्मीद के साथ वो बाजार पहुंचा। उस दिन हारून का रवैया कुछ मुख्तलिफ था। एक फकीर उसके पास आया। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, फकीर ने कहा। हारून ने फौरन अपनी थैली से चंद सिक्के निकाले और उसे दे दिए, मगर जैसे ही फकीर चला गया, हारून ने इर्द गिर्द देखा। क्या किसी ने उसे देखा? उसके चेहरे पर एक हल्की सी खुद पसंदी उभर आई। देखा, मैं कितना सखी हूं, उसने दिल में सोचा। शाम को वो बेसब्री से घर लौटा। अब तो आईना बदल चुका होगा, उसने खुद से कहा। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुआ, आईना उठाया और उसमें झांका, मगर कुछ भी नहीं बदला था, बल्कि अक्स पहले से ज्यादा तारीक लग रहा था। हारून के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्यों नहीं बदला? मैंने खैरात की थी। उसके अंदर से एक आवाज आई, मगर नियत वो खामोश हो गया। अगले चंद दिनों में उसने और भी नेकियां करने की कोशिश की। कभी किसी को रियायत देता, कभी किसी की मदद करता, मगर हर बार वो इस बात का ख्याल जरूर रखता कि लोग उसे देखें, उसकी तारीफ करें, और हर बार आईना वैसा ही रहता, या शायद और भी बदतर हो जाता। अब हारून के लिए ये सिर्फ एक आईना नहीं रहा था, ये एक अजाब बन चुका था। वो ना उसे छोड़ सकता था, ना उसका सामना कर सकता था। एक रात शदीद बेचैनी के आलम में वो खुद से बोला, क्या वाकई मैं इतना ही बदसूरत हूं? और पहली बार इस सवाल में गुरूर नहीं, बल्कि खौफ था। अब हारून की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर वैसी नहीं जैसी वो चाहता था। वही बाजार, वही दुकान, वही लोग, लेकिन अब हर आवाज उसे चुभती थी, हर चेहरा उसे अपने खिलाफ गवाह लगता था। मालिक, ये कपड़ा कितने का है? एक ग्राहक ने पूछा। हारून ने कीमत बताई, मगर उसकी आवाज में वो एतमाद न था जो पहले हुआ करता था। ग्राहक ने हैरत से कहा, आज आपने मुनासिब कीमत बताई है। ये एक आम सा जुमला था, मगर हारून के दिल में तीर की तरह लगा। तो क्या पहले मैं नाइंसाफी करता था? उसने दिल ही दिल में सोचा। उसका जहन हर वक्त उसी आईने के गिर्द घूमता रहता था। रात को वो फिर उसके सामने बैठा। मैंने कोशिश की, मैंने खैरात की, फिर भी कुछ नहीं बदला, वो बुड़बुड़ाया। आईना खामोश था, मगर उसका अक्स पहले से ज्यादा बोझल लग रहा था। इसी कश्मकश में कई दिन गुजर गए। फिर एक रात वो बाजार से वापस आ रहा था कि उसने गली के कोने में हलचल देखी। कुछ लोग जमा थे, किसी के रोने की आवाज आ रही थी। हारून ने करीब जाकर देखा। एक बूढ़ी बेवा जमीन पर बैठी थी, उसके साथ दो छोटे बच्चे सहमे हुए खड़े थे। सामने एक सख्त चेहरे वाला आदमी खड़ा था। कर्ज़ख्वाह, कल तक पैसे ना दिए तो ये घर खाली करवा दूंगा, वो सख्ती से कह रहा था। बेवा ने रोते हुए कहा, खुदा के लिए कुछ मोहलत दे दो, मेरे पास और कोई सहारा नहीं। मगर वो आदमी टस से मस न हुआ।
मैं कारोबार करता हूं, खैरात नहीं। ये अल्फाज सुनकर हारून जैसे साकित हो गया। यही अल्फाज वो खुद भी तो कहा करता था। उसने बच्चों की तरफ देखा। उनकी आंखों में खौफ था, वही खौफ जो उसने कई बार दूसरों की आंखों में देखा था मगर कभी महसूस नहीं किया था। हारून का दिल अजीब तरह से बोझल हो गया। मुझे क्या, उसने खुद से कहा, जैसे अपने आप को रोक रहा हो। ये मेरा मसला नहीं। वो मुड़कर जाने लगा मगर चंद कदम चलकर रुक गया। उसके जहन में आईने का वो भयानक अक्स उभरा, वही बेनूर आंखें, वही बदसूरत चेहरा। फिर उसने बच्चों की सिसकियां सुनी। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस मुड़ा। कितना कर्ज है, उसने कर्ज ख्वाह से पूछा। आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर रकम बताई, एक बड़ी रकम। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। ये वो लम्हा था जहां हारून के अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं, क्यों जाया करो। दूसरी आहिस्ता से कह रही थी, शायद यही वो सच है जिससे तुम भाग रहे हो। हारून ने गहरी सांस ली, फिर बगैर कुछ कहे अपनी थैली निकाली और पूरा कर्ज अदा कर दिया। कर्ज खा हैरान रह गया। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हारून ने नजरें झुका ली। बस कर रहा हूं। उसने ना अपना नाम बताया, ना किसी तारीफ की उम्मीद रखी। बेवा ने रोते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। खुदा तुम्हें खुश रखे, तुमने आज हमें बचा लिया। हारून ने आहिस्ता से हाथ छुड़ाया और खामोशी से वहां से चला गया। उस रात उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। कोई शोर नहीं, कोई घमंड नहीं, बस एक खामोश सी राहत। वो घर पहुंचा, कमरे में दाखिल हुआ। आईना वहीं रखा था मगर आज वो उसके करीब जाते हुए नहीं डर रहा था। उसने आहिस्ता से आईना उठाया और उसमें देखा। चंद लम्हों के लिए वो साकित रह गया। अक्स अब भी मुकम्मल खूबसूरत नहीं था मगर उस अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। आंखों में पहली बार एक चमक थी, चेहरे पर एक नरम सी तब्दीली। हारून की आंखों में आंसू आ गए। ये बदल सकता है, उसने सरगोशी की। उसी लम्हे उसी एक सच्चाई समझ आ गई। आईना आमाल नहीं, नीयत दिखाता है और आज पहली बार उसकी नीयत खालिस थी। वो कुर्सी पर बैठ गया, आईना अपने सीने से लगा लिया। मैंने सारी जिंदगी गलत रास्ता चुना, वो आहिस्ता से बोला, मगर शायद अभी देर नहीं हुई। और वाकई ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। उस रात के बाद हारून वो शख्स न रहा जो पहले था। सुबह जब वो बाजार पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, वही दुकानें, वही आवाजें, वही खरीदो फरोख्त। मगर हारून की नजर बदल चुकी थी। अब उसे हर चेहरा एक कहानी लगता, हर जरूरत एक जिम्मेदारी। मालिक, ये कपड़ा, एक गरीब औरत ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर कुछ सस्ता मिल जाए तो। पहले वाला हारून शायद उसे टाल देता मगर आज उसने नरमी से मुस्कुराकर कहा, आइए मैं आपको बेहतर चीज मुनासिब कीमत में देता हूं। औरत ने हैरत से उसे देखा। क्या वाकई? जी हां, हारून ने सुकून से जवाब दिया। कारोबार इंसाफ से ही बरकत देता है। उसके शागिर्द अली ने यह सब देखा तो वो चौंक गया। मालिक, आप ठीक तो हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। हारून मुस्कुराया। पहली बार शायद मैं वाकई ठीक हूं अली। दिन गुजरते गए। हारून अब भी तिजारत करता था मगर फर्क यह था कि अब उसका मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं था। वो नाप तोल में दयानत रखता, जरूरतमंदों की मदद करता और सबसे बढ़कर अपने हर अमल में नीयत को देखता। और हर रात वो आईने के सामने बैठता। शुरू में वो हल्की सी रोशनी अब एक नरम चमक में बदलने लगी। चेहरे की सख्ती कम होने लगी, आंखों में सुकून उतरने लगा। एक रात उसने आईने में देखा तो उसे अपना अक्स पहचानने में लम्हा भर लगा। वही चेहरा मगर अब नूर से भरा हुआ। आंखों में गुरूर नहीं, आजिज़ी थी। लबों पर खुद पसंदी नहीं, शुक्र था। हारून की आंखों से आंसू बह निकले। इसी लम्हे उसे दरवेश की बात याद आई। हर शख्स अपनी हकीकत देखने के बाद वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अगले दिन हारून ने पूरे बाजार में एक ऐलान किया, आज से मेरी दुकान पर कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ नहीं जाएगा। लोगों ने पहले यकीन न किया
मगर वक्त ने साबित कर दिया कि यह तब्दीली वक्ती नहीं थी। रफ्ता रफ्ता हारून का नाम आसफहान में एक नए अंदाज से लिया जाने लगा। अब वो सिर्फ एक अमीर सौदागर नहीं था, बल्कि एक मेहरबान इंसान, एक सच्चा मददगार था। सालों बाद एक दिन वही दरवेश दोबारा बाजार में नजर आया। वो खामोशी से हारून की दुकान के सामने रुका। हारून ने उसे पहचान लिया। वो फौरन आगे बढ़ा, अदब से झुका और बोला, आप ही थे ना जिन्होंने मुझे ये आईना दिया था? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, आईना तो सिर्फ एक जरिया था, असल सफर तुमने खुद तय किया है। हारून ने शुक्रगुजारी से कहा, आपने मुझे मेरी हकीकत दिखाई, वरना मैं सारी जिंदगी अंधा रहता। दरवेश ने उसकी आंखों में देखा और इस बार वहां सिर्फ रोशनी थी। अब तुम्हें इस आईने की जरूरत नहीं रही, दरवेश ने नरमी से कहा। हारून ने हैरत से पूछा, क्यों? दरवेश मुस्कुराया, क्योंकि अब तुम्हारा दिल ही तुम्हारा आईना बन चुका है। यह कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता हुजूम में गुम हो गया। हारून देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े आईने को देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि असल अक्स अब इस शीशे में नहीं, बल्कि उसके आमाल में झलक रहा है। इंसान का असल चेहरा वो नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वो है जो उसके आमाल बनाते हैं। और आसफहान के बाजार में अब एक नई खुशबू फैल चुकी थी, खुलूस की, इंसानियत की और सच्ची खूबसूरती की।